Hello viewers, you are welcome in this video class. In this video class, we will discuss the changes after October Revolution in Russia or the impacts of Russian Revolution on Russia in particular and on world as well. First impact was end of autocratic rule. पहला प्रभाव ये हुआ कि रशियन रेवोल्यूशन की वजह से रशिया में ऑटोक्रेटिक रूल समाप्त हो गया. The autocratic rule came to an end and it was a great impact of the Russia, and the Russian revolution was also focused towards the end of autocratic rule, and it was the objective of Russian revolution. As we know that there was an autocratic rule in Russia under Nicholas II, Tsar, who was called Tsar. There was a Tsar who ruled the Russia and who was despotic in nature. People were very unhappy under his rule because they had no rights, their economic condition was very bad, and their social status also was very low. इस तरह से वहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन ने ऐसे रूल को समाप्त कर दिया जो पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक था, पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि निरंकुशता पर आधारित था. दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ प्रोलेटरिएट केम इनटू एग्जिस्टेंस. As we know that the Russian Revolution was being run by the Lenin, and the Russian Revolution was held in the leadership of Lenin. Lenin, who was a great communist leader and who was a staunch supporter of the Karl Marxian theory and Karl Marxian thoughts that were based on the communism and socialism. This theory was in favor of proletariat class or the workers and the peasants. प्रोलेटेरिएट क्लास का मतलब है कि मजदूर और किसान, कृषक वर्ग जो मेहनत मजदूरी करते थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, उन लोगों के हित में ये क्रांति की गई थी क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी. और रशिया में दो क्लास मानी जाती थी मोटे तौर पर. एक क्लास नोबल क्लास थी, नोबल पीपल, जो पूरी तरह से रशियन स्टेट्स के मालिक थे, रशियन प्रॉपर्टी, रशियन रिसोर्सेस, रशियन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के स्वामी थे, उनके मास्टर थे. और दे वर ऑल्सो द मास्टर ऑफ द various posts, important posts of Russian administration as well. तो इस तरह के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद वहाँ पर प्रोलेटेरिएट क्लास की सरकार स्थापित की जाती है. प्रोलेटेरिएट मीन्स मजदूरों की सरकार स्थापित की जाती है जिसका उद्देश्य मजदूरों की कंडीशन को इम्प्रूव करना था, मजदूरों को पॉवर्टी से बाहर निकालना था और मजदूरों को शिक्षा और सुरक्षा देना था. इसी के साथ ताकि वो एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकें, यही रशियन रेवोल्यूशन का उद्देश्य था. रशियन रेवोल्यूशन वाज फॉर ब्रेड, फॉर हाउस and for clothing to the people of Russia, mainly the proletariat class. Third impact was communist or socialist ideologies flourished in Russia after the October Revolution in 1917. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़
are based on the thoughts of Karl Marx and Engels. They were the great thinkers or philosophers of Germany. Particularly Karl Marx was a German thinker and was a Jew by religion. He was a well-wisher of the laborers, well-wisher of the workers, peasants, and want their improvement. For this purpose, he made some recommendations that were based on the uh, which were based on the uh, distribution of land and other means of production to the people, or uh, nationalization of the means of production so that all people can get the opportunity or benefit from these resources. इस तरह से we can see that on the basis of theories of Karl Marx and Engels, the communist and socialist ideologies flourished in Russia. Fourth impact was rise of USSR as a strong country, as a powerful country. After revolution, रशिया का वहाँ पे उदय होता है और रशिया अब एक यूएसएसआर बन जाता है, क्योंकि लेनिन ने रशिया के अधीन जो भी वहाँ पर जो नेशनलिटीज़ थीं या जो दूसरे ऐसे संस्कृति के लोग थे जो रशियन संस्कृति से अलग थे लेकिन वो रशिया के अंडर थे, उनको फ्रीडम दे दी, उनको आज़ादी दे दी, जिन्होंने बाद में मिलकर के रशिया के साथ जुड़ने का फैसला किया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक का गठन किया, जिसमें 15 स्टेट शामिल थे. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक हैड 15 स्टेट्स इन टोटल. और इस तरह से यूएसएसआर का उदय होता है. USSR was totally based on communist theory, communist ideology, that is pro-labor, pro-peasant and pro-poor. Fifth change in Russia was social inequalities were abolished. We see here that there were many social inequalities in the society of Russia. The people were divided into two classes. On the one hand, there were nobles, and on the other hand, there were workers or peasants. Workers and peasants had no rights. They were living a miserable life. They were unable to earn their breads. They were unable to live in good houses, good you can say good houses. They did not have good houses too. So their condition was very miserable. They were living a life of poverty, and they were living a life of misery. Due to this, there was inequalities in the Russian society. Russian society was also divided as the French society was divided when there was French Revolution held in 1789. After the revolution, the leaders of Russia, mainly the Lenin, adopted a new principle, that was the principle of from each as according to his capacity and to each as according to his need. This theory is the communist theory. It says that people should get according to his need and they also should work according to his capacity. इस सिद्धांत का मतलब यह है कि लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम करना पड़ेगा और उन्हें उनकी ज़रूरतों के मुताबिक, उनकी नीड्स के मुताबिक उनको संसाधन दिए जाएंगे, उन्हें रिसोर्सेस दिए जाएंगे. तो दिस प्रिंसिपल इज़ द क्रक्स ऑफ कम्युनिज्म.
ये कम्युनिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच फ्रॉम ईच एज अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड टू ईच एज अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो यहाँ कैपेसिटी और नीड पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि हर व्यक्ति को उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम करना पड़ेगा, उसकी क्षमता के अनुसार काम करना पड़ेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे संसाधन दिए जाएंगे, उसे वस्तुएं दी जाएंगी। दूसरा बड़ा जो चेंज आया वो था नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, माइंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा। दिस वाज ए मेजर चेंज इन रशिया as these were all in the hands of the nobles or the rich people before revolution. रेवोल्यूशन के बाद इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और सारे के सारी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे जैसे कि लैंड है, फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो रेल है, ये सारी की सारी सरकार ने अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में ले ली। यानी गवर्नमेंट बिकेम द मास्टर ऑफ दीज ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक बड़ा परिवर्तन ये आया। थर्ड जो सोशल चेंज था वो था इनइक्वालिटी वॉज एबोलिस्ड। दिस इज वॉज नॉट वॉट, सो हियर इज ए मिसप्रिंट। इनइक्वालिटी वॉज एबोलिस्ड, वहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी उसे ख़त्म कर दिया गया और वहाँ जो असमानता या गैर बराबरी थी उसे ख़त्म कर दिया गया। ऑल मेड इक्वल बिफोर लॉ, सभी को कानून के सामने बराबर बनाया गया और सभी को राइट्स दिए गए, सभी को सिटीजन बनाया गया और वर्कर्स को ख़ास तौर से इम्पोर्टेंस दी गई, उनके काम को इम्पोर्टेंस दी गई जो कि पहले नहीं थी। Another great change was that work became a basis of right to food and right to vote. लोगों को भोजन का अधिकार दिया गया और उन्हें राइट टू वोट भी दिया गया, वोट का अधिकार भी दिया गया, लेकिन इसका बेस बनाया गया, इसका ग्राउंड बनाया गया वर्क को, काम को। यानी जो काम करेगा उसी को राइट टू फूड मिलेगा और उसी को राइट टू वोट मिलेगा। दिस वाज ए ड्रास्टिक चेंज इन द रशियन history as far the Russian revolution is concerned. रशियन रेवोल्यूशन ने एक बड़ा चेंज रशिया में ये लाया कि अब वर्क बिकेम द सेंटर पॉइंट ऑफ द रशियन सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल, क्योंकि काम के अनुसार ही अब व्यक्ति को खाने का अधिकार होगा, राइट टू फूड होगा और अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो उसे राइट टू फूड नहीं मिलेगा, दूसरे ना ही उसे राइट टू वोट मिलेगा। तो इस तरह से वर्क बिकेम द सेंटर, वर्क बिकेम अ बेसिस ऑफ राइट टू फूड एंड राइट टू वोट। फोर्थ ड्रास्टिक चेंज वॉज द न्यू इकोनॉमिक चेंजेस दैट इंक्लूडेड मेनी चेंजेस लाइक फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया। As we know that the Russia was a backward country and as compared with the Western countries, because the Russian economy was totally based on agriculture at that time or before revolution से पहले वहाँ की जो इकोनॉमी थी, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं हुआ था और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी था तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब रशियन रेवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। द फोकस वाज मेड ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके साथ ही फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो मेड एंड द फोकस वाज आल्सो मेड ऑन 5-year plans. So through 5-year plans a roadmap to development was made. किस तरह से विकास होगा, रशिया ने इसके लिए 5-year प्लान को अडॉप्ट किया। USSR adopted 5-year plans. Through these plans
the USSR made plan for development of the Russia, and this plan was based on step by step development of Russia. रशिया का स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होगा, यानी कि उन्होंने पहले एग्रीकल्चर पर बल दिया, फिर इंडस्ट्री पे बल दिया, फिर इस तरह से आगे उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए और उन टारगेट्स को 5-5 साल के टारगेट्स बनाए और उन 5-5 साल में उन टारगेट्स को अचीव किया. This is called 5-year plan. India also adopted 5-year plan scheme from USSR also, and in 1951 India started its first 5-year plan, that was from 1951 to 1956, and India had 12 5-year plans. That the 12th final 5-year plan was the last, that ended in 2017. After that, the Modi government has kept the 5-year plans aside, and now they have adopted a new economic policy, that is Vision 2030. So another great change was land factories were handed over to the people. Before revolution, the noble people were the masters of land and factories. The industrialists were the masters of the factories. But now the land and factories were distributed to the people. Land was distributed to the peasants and the factories were distributed to the workers. They were also given right to manage these factories. It means the management of the factories was also handed over to the people. People means here the workers. अब मालिक जो मजदूर थे, वर्कर्स थे, वही कंपनियों के मालिक बन गए और वो वर्कर्स ही अब फैक्ट्रियों को मैनेज करने लग गए, वही उनके मैनेजर बन गए. इट वॉज ए ग्रेट चेंज. Another important change in Russia after revolution was repudiation of foreign debts. It means after USSR, a new government came into power in Russia, and this government totally denied to pay foreign debts, as the Tsar had taken a lot of foreign debts from foreign countries, but now the new government denied or refused to pay the foreign debts. Another impact was that the foreign investment also was confiscated. And it means, इसका मतलब ये हुआ कि रशिया ने बहुत सारा विदेशी कर्ज लिया हुआ था, जिसको रशिया की नई सरकार ने चुकाने से मना कर दिया, पे करने से मना कर दिया, और बहुत सारे विदेशी लोगों ने, विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने रशिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था. तो नई सरकार ने उसको भी, उस इन्वेस्टमेंट को जब्त कर लिया, उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, और यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो उनका जो उनकी जो स्टेट्स थी, जो परिसंपत्तियाँ थी, उन संपत्तियों को उन्हें नहीं लौटाया. तो दिस वाज ऑल डन इन द नेशनल फेवर. Another important impact on Russia was the right to work became a constitutional right. It is not a spelling mistake है. Right to work became constitutional right. अब लोगों को काम का अधिकार मिल गया, और ये काम का अधिकार मिला ही नहीं बल्कि ये अधिकार संवैधानिक बन गया. इसका मतलब है कि सरकार की जिम्मेदारी बन गई कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लोगों को काम दे. तो एम्प्लॉयमेंट बिकेम स्टेट्स ड्यूटी. Another change was military training and service, was made compulsory. इन रशिया में लोगों के लिए अब ज़रूरी हो गया कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग करें और मिलिट्री सेवा में भी जाएं.
rise of Russia as a world. It is a fifth point, that is rise of Russia as a world power. Now Russia has emerged as a new center of power after the First World War that ended in 1918. 1918 में जो युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद रशिया जो है एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभरा. Sixth impact was that there was an end to the imperialist design or end of imperialist design. ओके, तो वहाँ पर पहले क्या था कि रशिया वॉज ए इम्पेरियलिस्ट कंट्री. रशिया का भी एक बड़ा एम्पायर था और कुछ दूसरे देशों को उसने अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपनी कॉलोनी बना रखा था. तो अब नई गवर्नमेंट ने, जो कि पूरी तरह से चाहती थी कि वो जो दूसरे कंट्री हैं वो गुलाम ना रहें और ये उनकी मर्जी होगी कि वो अब रशिया के साथ रहना चाहते या नहीं रहना चाहते, तो उन्हें फ्रीडम दी गई. इसके बाद हम कह सकते हैं कि वहाँ जो इम्पेरियलिस्ट डिज़ाइन था रशिया का वो अब बदल गया, चेंज हो गया, उसका अंत हो गया. और इस तरह से बाद में वहाँ पर यूएसएसआर का गठन हुआ. इसके अलावा वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन टू द वर्कर्स वर मेड. वर्कर्स ठीक तरह से पढ़ें लिखें, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए, उचित प्रबंध किए गए. तो इस तरह से रशिया के ऊपर रशियन रेवोल्यूशन ने ये बहुत सारे प्रभाव डाले, बहुत सारे परिवर्तन रशिया में हुए. इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में फिर हम रशियन रेवोल्यूशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प स्टोरीज़ को कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, then please like the video and share it also. Thank you very much.